Good morning, everyone. I am audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you very much. So we wait for 1 minute only, and we start today's lecture. Okay, and for when you join, please mute yourself. So we start today's lecture. So in previous lecture, I did that. I tell about the subject code. Then subject code marking scheme. Then my online resources available for you regarding this subject, that is Google Classroom, YouTube channel, online study material. Then specific study material online section is also available on my blog, that is university syllabus and university exam paper, video lecture, PPT and PDF. And today we start with our lecture with our syllabus. So we look out the syllabus of wireless communication. So this is a syllabus of wireless communication. So there is a total credit of 3 of this elective one. In same paper 30 marks, in same paper 70 marks. So what is the prerequisite of this subject? That fundamentals of communication computer network. And second, this is a second year subject, that is foundation of communication and computer network. And second, computer network technology, that is third year subject. So this is the two prerequisite required for this subject. Okay, then what is the course objective? The course objective means what? When what is need of this subject? So to provide the fundamental knowledge that form the basic of wireless communication system and network. Second, for creating foundation of cellular concept which will be useful for understanding the fundamental of cellular mobile communication system design. Third one, to provide knowledge about the mobile radio propagation model and various wireless communication channel effect. Next, to study various multiple access technique. Next, give student the explorer to recent emerging trend in wireless communication like software defined radio, as well as to provide overview of the recent trends like wireless communication like Wi-Fi, WiMAX, UMB radio and wireless ad hoc network. So after this objective, when you completed this subject, what do you achieve? That is mean by course outcome. What is my course outcome? Course outcome means when you completed this subject, after this semester, what do you get from this subject? It is called as a course outcome. So first, course outcome is understand the basic of propagation of radio signal. Second, understand the basic concept of basic cellular system and design requirement. Third, have an understanding of basic principle behind radio resource management techniques such as power control, channel, allocation and handoff. Fourth one, gain insight into various mobile radio propagation model and how the diversity can be explored to improve the performance. Next one, gain knowledge and awareness of the technology, how to effective share spectrum through multiple access technique, TDMA, CDMA, FDMA. Next, have a depth understanding of the design consideration and architecture of the different wireless system like GSM, CDMA, GPRS, etc. Next,
understanding of the emerging trend in wireless communication like Wi-Fi, WiMAX, software-defined radio, and related issue and challenges. When you completed this syllabus, all 6 units, then you get knowledge of all these 7 points. So we start with some of the narrate the syllabus of your unit number 1. That is, unit number 1 is regarding the introduction of wireless communication system. Introduction of wireless communication system, 7 hours. Okay, first point, evaluation of mobile communication. Next, mobile radio system around the world, type of wireless communication, comparison of common wireless system, Smita Kasar. So do not post any. सर मी तिला म्यूट करायला लावत होती. तिचा याच्यामधून आवाज येत होता आणि त्याच्यामुळे खरखर होत होतं. ते चुकून सेंड होऊन गेलं ऑटो करेक्ट मुळे. सॉरी. Comparison of common wireless system, trends in cellular radio and personal communication, second generation cellular network, third generation wireless network, wireless LAN, wireless local loop, wireless LAN, Bluetooth and personal area network. Next, unit number 2. Unit number 2 is cellular concept, the cellular concept, system design fundamentals. There is once again 7 hours. In that cellular system, hexagonal geometry cell and concept of frequency reuse, channel assignment strategy, distance of frequency reuse, channel and co-channel interface reduction factor, then SI ratio consideration and calculation of minimum channel and adjacent interface, handoff strategies, umbrella cell concept, tracking and grade of service, improve coverage and capacity of cellular system, splitting, sectorization, repeater, micro cell zone concept, channel antenna and system design consideration. Next, unit number 3, mobile radio propagation model, small scale fading and diversity, large scale path loss, free space propagation model, loss equation, path loss, N-loss and loss system, reflection, ray ground reflection model, diffraction, scattering, link budget design, max distance coverage formula, imperial formula for path loss, indoor and outdoor propagation model, small scale multipath propagation, impulse model for multipath channel, delay spread, Ferrer delay spread, upper bound small scale, multipath measurement of parameter of multipath channel, type of small scale fading, rhythm and release distribution, statistics of model, multipath fading channel and diversity technique. So these 3 units required for your in-same examination. Next one, unit number 4, that is multiple access technique, that is already done in your 3rd year, that is access method, TDMA, spread spectrum frequency hopping, direct sequence, CDMA and CSMA. Comparison of linear amplifier, BPSK, DPSK, DQPSK and non-linear amplifier, GMSK, GFSK, 4FM and FQPSK. Radio equipment, radio link design of digital wireless cellular system, spectrum utilization in digital wireless mobile system, capacity and throughput, message delay study and comparison of GSM, GFSK, FQPSK, modulation of wireless system, time division multiple access wireless system, code division multiple access spectrum digital cellular IS-95 system. This is unit number 4. In unit number 5, wireless communication in this GSM system architecture, radio interface protocol, localization and calling, handover,
authentication and security in GSM, GSM speech coding, concept of spread spectrum, architecture of IS-95 CDMA system, air interface, CDMA forward channel, CDMA reverse channel, soft handoff, CDMA features, power control in CDMA, performance of CDMA system, rack receiver, CDMA 2000 cellular technology GPRS architecture. And unit number 6, that is recent trends, introduction of Wi-Fi, WiMAX, Zigbee network, software defined radio, UWB radio, wireless ad hoc network, and wireless portability, security issues and challenges in wireless network. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग ये हो गया आपका सिलेबस. सो नेक्स्ट थोड़ा रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, रिजल्ट एनालिसिस. सो वी स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोर्स आउटकम. मैंने आपको बताए थे कोर्स आउटकम. सो इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस सिस्टम, यूनिट नंबर 1. ये unit number 1 is divided into 2 parts, part 1 and part A and part B. So in part A is evaluation of mobile communication, mobile radio system around the world, type of wireless communication system, comparison of common wireless system. And part B, second generation cellular network, third generation wireless network, wireless local loop, wireless local area network, Bluetooth and personal area network. So we start with our lecture and with our syllabus, that is unit number 1. part 1 से start करते हैं और introduction. So we must have some prerequisite required for this subject, that is communication systems. It is a prerequisite that you must know. That is first wired communication and wireless communication. So you must know the two different communication systems, that wired communication and wireless communication. So we start with our prerequisite, that is wired communication. What is mean by wired communication? The medium is a physical path, means when we transfer or get data from physical path that is using wired, it is called as a wired communication. अभी देखो वायर्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल, आप जब लैब में रहते हैं तो यहाँ पे देखो वायर सब चीजें पीसी जो आपका पीसी है उसके साथ सभी चीजें कनेक्टेड है, जो स्विच है उसके साथ वायर्ड कनेक्टेड है. स्विच से निकल के आता है कोई भी वायर तो वो लैपटॉप या आपके पीसी के साथ कनेक्ट रहता है. सो उसके बाद स्विच से जो भी वायर है ये सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है. ये जो सब चीजें, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो कम्युनिकेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज अ वायर्ड कम्युनिकेशन. बट आवर सब्जेक्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन. So what is mean by wireless communication? Doesn't require any physical medium but propagates the signal through space. इसका मतलब क्या है? It not require any physical medium. मतलब physical medium अभी आप सब लोग देखो उसमें से मुझे लगता है कि 70% या 80% स्टूडेंट जो है या आपके खुद के मोबाइल से ये लेक्चर सुन रहे होंगे. तो यहाँ पे देखो आप अगर लेक्चर मोबाइल से सुन रहे हैं तो यहाँ पे कहाँ पे वायर जो डेटा आ रहा है आपके पास या डेटा आप भेज रहे हैं उसके लिए कुछ वायर ज्वाइन है क्या? नहीं, मगर फिर भी आपके पास सब डेटा पहुंच रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल? ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ द सिग्नल थ्रू स्पेस. अभी आप यहाँ पे ध्यान में रखो वायरलेस कम्युनिकेशन, और हमको वही देखना है. हमको ये पूरे 6 यूनिट में यही देखना है कि हाउ मेनी प्रोपोगेशन मॉडल्स प्रेजेंट,
हाउ डज प्रोपोगेशन डज, मतलब कैसे प्रोपोगेशन होता है सिग्नल का, और अलग अलग उसके टाइप्स क्या है, उसके आर्किटेक्चर क्या है, ये सब देखने। मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम बट प्रोपोगेट्स द सिग्नल थ्रू स्पेस। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और अभी आपके पास डायरेक्टली फिजिकली अवेलेबल है ये सब चीजें। मेरा लैपटॉप है ना, मेरा लैपटॉप जो मैंने लैन से कनेक्ट किया है, मतलब मेरे पास वायर्ड कम्युनिकेशन है, मगर आपके पास देखो वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन है मतलब आप क्या है कि जो प्रोपोगेशन हो रहा है आपके मोबाइल के पास सिग्नल का, उसका हेल्प लेके आप डेटा आ रहा है और जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज ए वायरलेस कम्युनिकेशन। सो इट इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ योर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन, what is the electromagnetic wave? So this is also one of the prerequisite for your wireless communication. Electromagnetic wave carry the electromagnetic energy of electromagnetic field through space. So what is electromagnetic wave? Electromagnetic waves means what? Ki carry the electromagnetic energy ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्पेस। मतलब आपका जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी देखो वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, मगर ये प्रीरिक्विजिट आपको पता होने चाहिए। सो ये प्रीरिक्विजिट में वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्पेस। इट इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ योर this communication system. So we directly jump into our syllabus, that is wireless communication. So look at this wireless communication device, look at this picture। यहाँ पे देखो ये पिक्चर देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे ना ये वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। यहाँ पे जीएसएम मोबाइल फोन का ये जो है पॉइंट, ये जो है जीएसएम मोबाइल फोन आपके पास यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन पे जो दिख रहा है, ये जीएसएम मोबाइल फोन। इसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ, इसके बाद यहाँ पे जीपीएस है, जीपीएस जो आपके पास अभी भी आपके मोबाइल में होगा, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वाईफाई है एंड आरएफआईडी है। ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। सो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरी चीज, ये सभी डिवाइसेस आपके पास प्रेजेंट है, ये सभी डिवाइसेस आपके पास प्रेजेंट है। आपके मोबाइल फोन में जीएसएम है प्रेजेंट है, आपके मोबाइल फोन में जीपीएस प्रेजेंट है, आपके मोबाइल फोन में ब्लूटूथ प्रेजेंट है। अभी इंफ्रारेड कहाँ पे है? अभी आप देखो जहाँ पे आप बैठे हो उसके आसपास आपका कुछ तो भी टीवी होगा घर का, तो घर के टीवी चालू करने के लिए बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि टीवी चालू करने के लिए आपके पास क्या है, अभी रिमोट है, तो रिमोट इंफ्रारेड यूज करता है। नेक्स्ट वाईफाई, बहुत सारे लोगों को घर में वाईफाई डिवाइस लगा होगा जहां आपसे आप नेटवर्क एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद आरएफआईडी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी। तो रेडियो ये कहाँ पे मिलेगा आरएफआईडी? तो आरएफआईडी जो आपका किसी के पास, मतलब आपने अगर देखा होगा तो आजकल टोल नाके पे ये आता है डायरेक्टली, टैग देना पड़ता है, टैग कंपलसरी कर दिया है। तो टैग मींस व्हाट? आरएफआईडी। तो ये सभी डिवाइसेस आपके पास है, और हम वही देखने वाले हैं कि ये डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं या हाउ इट इज बी वर्क। सो फिर से हम अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बाद हम इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन इसके ऊपर चलते हैं। सो इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is mean by evaluation of mobile communication? Means how, कहाँ से आया मोबाइल कम्युनिकेशन का, शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ पे है, और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए,
It is called as the evaluation of mobile communication. So before that, इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में जाने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी। इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में जाने के पहले मैं आपको ये बोल दूं कि सिंस रेडियो स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अभी आप बोलोगे सर हम तो AM FM सुनते हैं, ये भी रेडियो है। हाँ ठीक है, वो भी रेडियो है, वो भी फ्रीक्वेंसी है। देखो जैसे 87 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 तक आपका FM चलता है। किसने ऐसे बोला क्या कि 150 मेगाहर्ट्ज पे लगाओ रेडियो मिर्ची? नहीं ना, इट इज, तो ये प्री डिफाइन है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का सेट प्री डिफाइन है। उसी तरह से आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी लगती है और उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और वो उसके उसके वहां तक जाने के पहले यहाँ पे देखो लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। फर्स्ट MTS, it is developed in 1949, AT&T commercial mobile telephone service from AT&T commercial mobile telephone service from its start in 1946. AT&T introduced mobile telephone service to 100 towns and highway corridors by 1948. तो फर्स्ट देखो 1946 1949 का ये यहाँ से ही मोबाइल टेलीफोन सर्विस स्टार्ट हुई। मगर इसके बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि 1946 में भी चालू हुआ ये मोबाइल टेलीफोन सर्विस, मगर ये ना मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देना पड़ता था, ये ना फिक्स था। मतलब आप एक तो कार में, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट लिखा है प्रायर टू 1973 मोबाइल टेलीफोनी वाज लिमिटेड टू फोन्स इंस्टॉल इन कार एंड अदर व्हीकल। मतलब आपको ना फिक्स करके रखना पड़ता था, वो जो फोन्स थे वो कार या व्हीकल में फिक्स करके रखना पड़ता था प्रायर ऑफ 1973। मतलब 1949 में भी अगर डेवलप हुआ मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज, फिर भी क्या होता था, वो 1973 के पहले वो फिक्स था। आप ऐसे आपके पास अभी घर में आपके पास सभी के पास मोबाइल है, आप सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मगर ये मोबाइल फोन आप इधर उधर लेके नहीं जा सकते थे 1973 के पहले। So next one is IMTS. AT&T introduced the first major improvement in mobile telephone in 1965. Give the improved service the obvious name of improved mobile telephone service. ये उसने नाम दिया 1965 में। Next, prior to 1973, mobile telephone was limited to phone installed in car and other vehicles. So देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल टेलीफोन जो था ना ये लिमिटेड रिसोर्सेज तक था। और मोबाइल टेलीफोन के रिलेटेड में आपको बात बताना चाहता हूँ, रेडियो स्पेक्ट्रम यूज ए कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना मोबाइल की, ये गवर्न करता है, जो अपना गवर्नमेंट होता है उसके हाथ पे रहता है। ये कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर के पास भी नहीं रहता है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके पास भी नहीं रहता है, और रिसर्चर के पास भी नहीं रहता है। एक बात ध्यान में रखो, मोबाइल रेडियो स्पेक्ट्रम जो रहता है ये गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है ये। और गवर्नमेंट जैसे देखो 2G स्पेक्ट्रम का ये निकलता है कि किसको लेना है, जैसे 3G का है अभी निकला था कि किसको लेना है, वो किसको परचेस करना है। तो उस तरह से एयरटेल, आइडिया, उसके बाद जियो, उन्होंने ये परचेस करते हैं उस टाइप का, आपका ये जो है ये परचेस करते हैं उनके लिए, और उसके बाद यूज करना पड़ता है। ओके, सो
मैं फिर से बोल दूं कि रेडियो स्पेक्ट्रम जो होता है ये कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट, नॉट बाय, ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सर्विस प्रोवाइडर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इंटरप्रेनर एंड रिसर्चर, ये कोई भी नहीं। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको बोल दूं। देखो, एयरटेल, एयरटेल जो कंपनी है उसका मोबाइल देखा है क्या आपने? या सैमसंग है, उसका आपने ऑपरेटर देखा है क्या? मतलब वो उसका सिम कार्ड देखा है क्या? नहीं। तो ये दो टाइप के अलग अलग है। एक बात ध्यान में रखो, इसमें दो टाइप के, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब क्या? उसको वो डिवाइस क्रिएट करना। जैसे सैमसंग है, सैमसंग ये क्या करता है? डिवाइस क्रिएट करता है। ओप्पो ये क्या है? डिवाइस क्रिएट करता है। मगर सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करके देने वाले कौन कौन है? सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, आइडिया, जियो, ये क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि दो डिफरेंट चीजें, एक तो मैन्युफैक्चरर अलग हो गया, सर्विस प्रोवाइडर अलग हो गया। और सर्विस मैन्युफैक्चरर को कोई जरूरत नहीं रेडियो स्पेक्ट्रम की, उसको जरूरत नहीं। वो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर के मोबाइल फोन जनरेट करके मतलब मैन्युफैक्चरर करेगा। मगर एक्चुअल में मोबाइल स्पेक्ट्रम का किसको जरूरत है सबसे ज्यादा? जो सर्विस प्रोवाइडर है। वो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करके देता है आपको वायरलेस कम्युनिकेशन का। जो भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, आप अभी मेरी चीज सुन रहे होंगे, तो किसी के पास एयरटेल का कार्ड होगा, किसी के पास जियो का कार्ड होगा, किसी के पास आइडिया का कार्ड होगा। तो ये जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है, उनका काम क्या है? आपको सर्विस देना। ये मोबाइल मतलब वायरलेस थ्रू ये सर्विस देना, ये इनका काम है। सो ये जो काम है, इट इज कॉल्ड एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सो रेडियो स्पेक्ट्रम यूज बाय कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर ये परचेस करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर रेडियो स्पेक्ट्रम या रेडियो फ्रीक्वेंसी परचेस करते हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोलता है ये इतनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इतनी उसमें से बांट देता हूँ मैं। ये एयरटेल को बांट दी, ये जियो को बांट दी, ये आइडिया को बांट दी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी बैंड वही इस्तेमाल करेगा, उसमें दूसरा कोई वो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं इस्तेमाल कर सकता। मतलब दूसरा सर्विस प्रोवाइडर वो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं यूज कर सकता। हम यूनिट नंबर 2 में वो देखेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम जाएंगे ना, तब ये डिटेल सब चीजें आपको मिलेगी। मगर आपको ये ये बात बताने के लिए मैंने क्यों बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद prior to 1973 mobile telephony was limited to phone installed car and other vehicle. So इसके बाद सबसे बड़ी चीज है, मोटोरोला वाज द फर्स्ट कंपनी, Motorola was the first company to produce the handheld mobile phone on April 3, 1973. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोटोरोला ने फर्स्ट मोबाइल फोन डेवलप किया on April 3, April 3, 1973. Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment, placing a call to Dr. John S. Eagle of Bell Lab, his rival. मतलब ये देखो, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट मोबाइल आ गया। इसके लिए मैं आपको ना डिस्कवरी का एक ये बताता हूँ। डिस्कवरी में ना इसके बारे में एक आया था, सीरीज आया था कि मोबाइल फोन का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो आप अगर यूट्यूब के ऊपर या कुछ इसके ऊपर जाके वो देख सकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसने कैसे इन्वेंट किया वो फर्स्ट मोबाइल। तो फर्स्ट मोबाइल मोटोरोला का था, जो कि मोटोरोला ने डेवलप किया था अप्रैल 3, 1973 में। अप्रैल 3, 1973, तो ज्यादा पुराना नहीं है ये मोबाइल फोन, अभी आया है। और इंडिया के बारे में मैं और चीजें नेक्स्ट लेक्चर में, इंडिया में कब आया इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया ये फोन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फोन। मगर मोटोरोला वाज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस हैंडहेल्ड मोबाइल फोन। देखो यहाँ पे प्रोटोटाइप हैंडहेल्ड फोन यूज बाय डॉक्टर कॉपर। वेट देखो इसका कितना था, 1.1 किलोग्राम। 1.1 किलोग्राम मतलब 1 केजी के ऊपर उसका फोन का वेट था।
and measure 23 by 13 by 4.5 centimeter. The prototype offer a talk time of just 30 minutes and took 10 hours to recharge. देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 30 मिनट का टॉक टाइम, मतलब आप 30 मिनट बातें कर सकते सिर्फ, और उसको चार्ज होने के लिए 10 आवर्स लगेंगे। अगर आपको ऐसे मोबाइल अभी दिया जाए तो आप बोलोगे सर ये मोबाइल को रखो और सब रखो, कुछ जरूरत है हमको ये मोबाइल की कि 30 मिनट बात कर सकेंगे और उसके लिए 10 आवर्स का रिचार्ज, मतलब उसको चार्ज करने के लिए 10 आवर्स लगेंगे। तो देखो ये फर्स्ट मोबाइल जो था उसका वेट 1 किलोग्राम था। इसके बाद वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 9.5 इसका ये साइज था, सेंटीमीटर का ये साइज था। और प्रोटोटाइप ऑफर ऑफ टॉक टाइम, मतलब 30 मिनट्स का टॉक टाइम और 10 आवर्स का रिचार्ज टाइमिंग लगता था। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज का लेक्चर के लिए लेस देन 1 मिनट्स बाकी है। मैं आज के लेक्चर का मतलब यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर यहाँ पे। तो हमने ये लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट जो भी है सिलेबस का वो देखेंगे। और कोई भी डाउट होगा मुझे आप पूछ सकते हैं बीच में लेक्चर में, डोंट बॉदर अबाउट दैट। कोई किसी को मैं आपको बोलता हूँ कि डोंट बॉदर अबाउट दैट, एनी क्वेश्चन यू हैव योर माइंड प्लीज रेज इन आवर लेक्चर। ओके, आप लेक्चर में पूछ सकते